Hello students, welcome back to this YouTube channel. Today, in the series of 12th Commerce CCSP, we'll be continuing with the chapter number 3 from SP portion, that is debentures. Before starting today's video, let us quickly recall what we have learned till now. In the previous part of the video, what we have started with the learning objectives from the chapter, what we are going to learn, and then we have understood about the debentures and characteristics of debentures and what debenture actually mean. Okay, so today we are going to start with types of debentures. ओके, तो स्टूडेंट्स हमने जब लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे तभी हमने दिखाया था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, 4 टाइप के डिबेंचर्स है जो हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर. तो लेट अस स्टार्ट. Types of debenture. For the convenience of public, the company management issues different types of debentures. Debenture holders give utmost importance to the security of their money. पब्लिक के इश्यू के लिए, पब्लिक के कन्वीनियंस के लिए अलग अलग टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स कोई भी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी इश्यू कर सकती है. ओके, तो क्या देखते कौन कौन से हैं. तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिबेंचर. फर्स्ट वन इज मॉर्गेज डिबेंचर. Second one is fully convertible debenture known as FCD. Then comes partly convertible debentures PCD and non-convertible debentures NCD. Okay, तो first है हमारा mortgage debenture. Mortgage debenture क्या है? The company by issuing such debentures create a charge on the assets which can be a fixed charge or floating charge. The company has to obtain the approval of trustees of debenture holders before taking any decisions regarding these assets. At the time of liquidation, the debenture holders have the first right on the asset of the company. तो जो हमने पहले पढ़ा था वही कि जब किसी असेट को एज अ मॉर्गेज रख के डिबेंचर्स इशू किए जाते हो तो उस असेट के ऊपर सबसे पहला राइट किसका होगा? डिबेंचर्स होल्डर का होगा. और अगर कंपनी को उस असेट्स में कोई चेंजेस करने भी होंगे तो जो डिबेंचर ट्रस्टी है, जो डिबेंचर होल्डर्स ने अपॉइंट किए हैं, उसकी परमिशन लेना कंपलसरी है, उसकी परमिशन लेना पड़ेगा. ओके, तो मॉर्गेज डिबेंचर बेसिकली ये वो डिबेंचर्स हो गए जिसमें उन्होंने कोई असेट एज अ सिक्योरिटी, एज अ चार्ज क्रिएट करके डिबेंचर्स इशू किए हैं. तो उससे क्या होगा कि पब्लिक में एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होगा कि अगर कंपनी को लॉस भी होता है तो हम ये असेट बेच के हमारा पैसा रिकवर कर सकते हैं. Okay, next is fully convertible debentures FCD. In accordance with the agreement with debentures holder, on completion of specified time period, these debentures are converted into equity shares. The company gives 2 options to holder: to redeem the debentures or to take equity shares of the same amount. If the debenture holders opt for fully convertible debentures FCD, then his rights as creditors come to an end and he gets right as a equity shareholder. Okay, तो second type जो है हमारा वो है fully convertible debentures. fully convertible debentures में issuance के टाइम पे एक एग्रीमेंट होता है कि स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद 5 इयर्स, 7 इयर्स, 10 इयर्स, जो भी टाइम पीरियड उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया हो या फिर कंपनी ने ऑफर किया हो, उस टाइम पीरियड के बाद कंपनी 2 ऑप्शन देगी डिबेंचर्स होल्डर्स को. फर्स्ट ऑप्शन विल बी या तो डिबेंचर्स रिडीम कराने, मींस डिबेंचर्स के अगेंस्ट में जो मनी है, जो फंड है, पैसा बनता है, वो पैसा ले लीजिए आप, या फिर आप उतने ही रुपीस के इक्विटी शेयर ले लीजिए, मींस डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा लीजिए. और क्रेडिटर, आप जो कंपनी के क्रेडिटर हैं अभी डिबेंचर्स होल्डर्स के तौर पे, तो अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स ले रहे थे तो आप क्या बन जाएंगे? ओनर. तो सेकंड ऑप्शन में क्या देगी कंपनी? या तो आप फर्स्ट ऑप्शन, या तो आप पैसे ले लीजिए, रिडीम करा लीजिए डिबेंचर्स को, और उतने ही रुपीस के इक्विटी शेयर ले लीजिए और क्रेडिटर से क्या बन जाइए? ओनर. ओके, तो इस टाइप के डिबेंचर्स को हम कहते हैं फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स. फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स. ओके, थर्ड वन इज पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स PCD.
Here the debenture is divided into two parts, where one part is fully convertible and other part is non-convertible. Equity shares are issued against the convertible part while the non-convertible part is redeemed. Okay, तो थर्ड क्या है, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. इसमें क्या होता है कि सपोज आपने जितने भी डिबेंचर्स लिए उसके टू पार्ट्स हो जाएंगे. वो पार्ट्स पहले से डिसाइडेड होता है कि भाई अगर आपने 10 डिबेंचर्स लिए तो 6 विल बी कन्वर्टेबल, 5 विल बी कन्वर्टेबल और 4 विल बी कन्वर्टेबल और व्हाटसोएवर. तो इन शॉर्ट दो पार्ट होंगे आपके अंडरटेकिंग के. उसमें से एक पार्ट जो आपको रिडीम कराना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट में आपको पैसे मिल जाएंगे. और जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको चॉइस रहेगी कि आप चाहे तो उसको रिडीम कराइए और चाहे तो उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा लीजिए. जो हमने फुली कन्वर्टेबल होता है उसमें सारे डिबेंचर्स जितने भी आपके पास वो आपको पूरे चॉइस रहती है वो पूरे कन्वर्ट कराने में. लेकिन पार्टली में आपको एक शेयर, एक पार्ट ही आपको कन्वर्ट करने की चॉइस मिलती है या ऑप्शन मिलता है. क्लियर? तो उसको बोलते हैं पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. और फोर्थ वन इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, दैट इज NCD. These debentures are not converted into equity shares. The holders are paid their money back by redemption at the end of specified time period. नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में कोई ऑप्शन, कोई चॉइस कंपनी देती नहीं है डिबेंचर्स होल्डर्स को. टाइम पीरियड जितने के लिए डिबेंचर्स इशू किया था वो टाइम पीरियड खत्म होते ही उनको पैसा वापस मिल जाता है. दे आर पेड देयर मनी बैक. ओके, तो ये थे हमारे 4 टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. अब हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ इश्यू ऑफ debentures. There are specific provisions in the Indian Companies Act for the issue of debentures. It is necessary to comply with all these provisions at the time of issuing debentures. If any of this provision is not complied with, then the company concerned officer of the company is liable for punishment. It is necessary to ensure that there should be no risk or danger to the interest of debenture holders. The procedure for the issue of debentures is as under. तो प्रोसेस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में भी कंपनीज एक्ट ने एक प्रोसेस बनाया हुआ है. वो प्रोसेस को फुलफिल करना, पूरा लीगल प्रोविजंस फॉलो करना कंपलसरी है. अगर नहीं करते और कोई लॉस होता है तो जो कंसर्न्ड ऑफिसर है या कंपनी है वो उसको पनिशमेंट के लिए वो लायबल रहती है. और ये भी इंश्योर करना जरूरी है कि कोई रिस्क और कोई डेंजर नहीं है डिबेंचर्स होल्डर्स के इंटरेस्ट को. ओके, तो क्या क्या प्रोसीजर है देखते हैं. फर्स्ट वन इज रेजोल्यूशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सबसे पहले प्रोविजन ऑफ डिबेंचर्स जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होना चाहिए. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अलाउ किया हो तो उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना है कि हमें डिबेंचर्स इश्यू करना है और कितने इश्यू करना है, टोटल इश्यू क्या है, अमाउंट ऑफ टोटल इश्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कब कैसे करने वाले, अमाउंट ऑफ डिबेंचर, सर्टिफिकेट और कंडीशंस. ये सारी चीजें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में पास होनी चाहिए. ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में पास होगी तो देन सेकंड स्टेप विल बी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग. यही चीज जनरल मीटिंग में वापस डिस्कस होगी और जनरल मीटिंग में भी सैंक्शन होनी चाहिए. फॉर द सैंक्शन फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज obtained in general meeting of the company. If due to issue of debentures the debt of company exceeds free reserve of the company, or if debentures are to be issued for an amount exceeding free reserve fund, then the approval of member is obtained by the convening general meeting of member. जो कंपनी के पास फ्री रिजर्व पड़ा है उससे ज्यादा के अगर डिबेंचर्स इशू करने हैं तो जनरल मीटिंग के अंदर बाकी मेंबर्स की परमिशन लेना जरूरी है. ओके, तो फर्स्ट हो गया रेजोल्यूशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेकंड हो गया रेजोल्यूशन बाय जनरल मीटिंग, थर्ड आता है परमिशन ऑफ सेबी. डिबेंचर्स इशू करने से पहले कंपनीज एक्ट और सेबीज की गाइडलाइन फुलफिल करनी है और परमिशन लेनी है सेबी की. सेबी परमिशन ऑफ सेबी इज ऑब्टेन्ड. ओके, देन फोर्थ इज टू इश्यू प्रोस्पेक्टस. पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू डिबेंचर्स बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस which describes content of debentures. Investors study it and take decision to purchase the debentures. जैसे हम शेयर के लिए ऑफर करते हैं पब्लिक को बाय प्रोस्पेक्टस, ऐसे ही डिबेंचर्स के लिए भी प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा. ओके, देन अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी फॉर डिबेंचर्स. फिफ्थ स्टेप क्या हो गई कि जो ट्रस्टी है डिबेंचर्स है उसके लिए एक डिबेंचर्स ट्रस्टी या ट्रस्ट डीड बनानी पड़ेगी और उसके लिए एक ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा. सो
तो डिबेंचर्स होल्डर्स जो है उनका इंटरेस्ट उनके सेफगार्ड करने के लिए एक ट्रस्ट डीड बनाई जाती है, इसको डिबेंचर ट्रस्ट डीड भी कहा जाता है, और उस ट्रस्ट डीड के अंदर ट्रस्टीज को अपॉइंटमेंट करती है कंपनी। ओके, नेक्स्ट इज एग्रीमेंट विद अंडरराइटर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि शायद डिबेंचर्स कम इशू हुए तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर उसके लिए हम अंडरराइटर्स को अपॉइंट करते हैं फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। नेक्स्ट इज टू ओपन एन अकाउंट विद शेड्यूल बैंक। शेयर इशू के तरह ही डिबेंचर्स जब इशू करना हो तो एक सेपरेट अकाउंट चाहिए। ओके, तो एक नया अकाउंट खुलेगा कोई भी शेड्यूल बैंक के थ्रू एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए, मनी रिसीव करने के लिए। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन इन स्टॉक एक्सचेंज। अगर प्रॉस्पेक्टस में स्टेट किया गया हो तो कंपनी को एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करके लिस्टिंग ऑफ डिबेंचर्स को इश्यू कराना होगा, और उसके बाद ही डिबेंचर्स मार्केट में ट्रेड हो सकेंगे। अगर स्टॉक एक्सचेंज रिफ्यूज कर देता है रजिस्ट्रेशन को या कैंसिल कर देता है तो कंपनी को डिबेंचर्स होल्डर्स को सारा पैसा वापस पे करना होगा। ओके, सो apply to a recognized stock exchange for listing of debentures issue so that debentures can be traded. And ninth stage है to prepare allotment register for debentures. सब्सक्रिप्शन क्लोज होने के बाद जिन्होंने अप्लाई किया है उसके लिए कंपनी सेक्रेटरी को एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, और एक डिसीजन लेना होगा कि भैया अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स बोर्ड ऑफ मीटिंग में कैसे हुआ है, कैसे किसको अलॉटमेंट हम करने वाले हैं। और लास्ट स्टेप होता है डिबेंचर सर्टिफिकेट। सब्सक्रिप्शन होने के बाद पार्ट पेमेंट जो हमने कंपनी ने मांगा होगा वो पेमेंट किसी ने कर दिया, उसके बाद फुल पेमेंट रिसीव करेगी कंपनी, और फुल पेमेंट के बाद जो डिबेंचर्स है वो अलॉटेड रहता है। आफ्टर रिसीविंग द फुल अमाउंट टुवर्ड्स डिबेंचर्स अलॉटेड द कंपनी सेक्रेटरी प्रिपेयर्स डिबेंचर सर्टिफिकेट। फुल पेमेंट रिसीव होते ही कंपनी सेक्रेटरी डिबेंचर सर्टिफिकेट बनाएंगे, और कंपनीज प्रोविजन के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग वो डिबेंचर्स डिस्पैच कर देंगे टू द डिबेंचर्स होल्डर। दिस वे योर डिबेंचर issue or procedure for debenture issue is completed. Okay, so I hope you guys have understood today's session. If you have any doubt, please fill down the comment section. Till then, stay home, stay safe, happy learning.